Now I call our expert to continue the session. Sir, you can start now. Hello, good evening, everyone. So, I think hope all are fine, enjoying our construction life. Voice is audible. Hello. Yes, sir. So, first, let me introduce myself. See, in that particular field, there is so many people around this particular class having more experience than me, but I have a little brief about myself. I have done my master's in construction management in 2016. I am working on Primavera from last 6 years. I almost created or programmed 250 kilometer of viaduct project, which include underground metro, elevated metro. Even I have not included the highway projects. I have done the highway projects also. Juari Bridge, if you know, everybody got Goa project of Juari Bridge. I have done the RVNL Uttarakhand project, the tunnel project. Then currently I'm working with or working on the high speed project where I'm looking after 237 kilometer of schedule. So, so basically here in that particular class, we are going to learn a something which not as a typical Primavera class. We are not going to take any activity as an example like activity ABC. We take a proper elevated project. Okay. See, you are here to learn a presentation, or I am here to give a English presentation. If you want, I surely you can leave the class. I don't mind it. Okay. If you know better than me, come and teach. I don't mind it. Okay. I know there should be some mistake. It is currently 9 p.m. and I haven't created the PPT and I'm not checking the spellings and all. If you want to learn, you learn it. If you don't want to learn it, it's not my problem. It is your loss, not my loss. I will get my money if some people will join or not. Okay. तो तुम्हें पता है ना इंडिया में सबकी स्पेलिंग अगर सबसे ज्यादा अंग्रेजी होते ना तो अंग्रेजी लीड कर रहे होते सब जगह कम्युनिकेशन स्किल की क्लास नहीं है ना इंग्लिश की क्लास है ठीक है सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्ट द प्लानिंग ठीक है आपको क्या है किसी भी बड़े कॉलेज में जाए एमटेक करेंगे नाउ दे हैव a Primavera as a software or as a course. Nowadays, everyone talking about we should know the Primavera. If you even not Primavera, if you go, they say you know the BIM, you know XYZ software, but knowing Primavera does not fulfill the requirement for the program and project planning. Okay, you can learn any software. If I say I know AutoCAD, I know BIM, I also know Straightforward, but I cannot use proficiently or proper way because I don't know exact meaning or exact command where I can command those things. If somebody says I know it, I also know a linear programming software, but if compared to speed, the speed on Primavera is more faster as compared to the another software. I also know the MSP, but I'm not using MSP because my current field does not require the MSP programming. They required Primavera. Okay. So why we are here? We are going to learn a Primavera with a time cycle for all activity. In this particular demo, we have considered some time cycle key, which way we are going to proceed. Based on the resources, we will link the construction activity. Okay, we are not going to randomly link the piling activity. We will link whatever the resources we have in our bank, knowing the minimum requirement of resources for the project. Okay, first thing when you are doing a planning, you should know the threshold of your working. Okay, without knowing the threshold, you cannot achieve anything. Means threshold means if you know you have a two piling rig, maximum you can do a 50 pile. So
whenever you are doing that particular things planning related to pile, your quantity cannot go beyond 50. Not like that 1 month you are jumping 100 because you want to complete project on time, but आपका वो रिसोर्सेज फुलफिल नहीं करेंगे, तो दोज थिंग नीड टू बी चेक। वो कैसे करेंगे वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एज अ प्लानर व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर जंपिंग ऑन द प्राइमेरा प्रोग्राम? ओके, because you can not directly jump on the Primavera program, because now a Primavera program hold as a contractual submission. Okay, so a Primavera program going to help you in a lot way कि क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे होने वाली है। in industry execution people think a planning engineer should know the construction sequence and time cycle। ये बाय डिफॉल्ट चलता है कि हाँ आपको सब पता चलना चाहिए, चाहे आपने फर्स्ट डे ही कदम रखा हो उस प्रोजेक्ट में, तो यू शुड नो एवरीथिंग। वो सारी चीजें होती है। नाउ एज अ गुड प्लानर यू नीड टू हैव अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ओके, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल मीन्स यू आर ऑब्जर्व, बिकॉज क्या होता है ना, आपको हर चीज मिलती नहीं है, थाली में परोस के नहीं मिलती है आपको। आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सारी टाइम साइकिल धीरे धीरे सीख के ही पता चलती है। So first day, I am not saying you can prepare a program 100% right. Okay, or little bit a contractual condition because you are making a program। आपको मतलब contractually चीजें नहीं पता है कि आपका अप्रूवल कितने दिन में आएंगे, आपको क्या कैलेंडर यूज करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। While preparation of program, you should prepare your program with respect to project milestone. Now, if anybody knows the metro project or any highway project, there is always some milestone। So milestone based planning should be done for the client purpose because a project milestone is the base of your extension of time। Now, why everybody is gathered here? कि क्यों हम इधर हैं? A job opportunity nowadays, a work program required is a mandatory for all government projects। Even agency and employer have their specific requirement of software like Talos, MEP। Nowadays, one more software is into the picture। Hemal, you can leave it. I don't have any issue. Okay. So a thing like if you see a RVNL project having a 1 lakh plenty if you don't have a planning engineer having a 5 years of experience। Delhi Metro, NCRTC, all having those clauses in their contract conditions। If there is a boundary कि आपको वो सारी चीज फुलफिल करनी है, if the person is not there, it should be a heavy penalty on you based on the contract conditions। now program submissions पे भी आपके मोबिलाइजेशन एडवांस डिपेंड करते हैं कि आपका सेकंड मोबिलाइजेशन एडवांस नहीं मिलेगा, आपका प्रोग्राम अप्रूव नहीं है तो आपको लैंड हैंडओवर आपका प्रोग्राम के वैल्यूज पे मिलता है कि आपने वर्क प्रोग्राम में क्या लिया। जब अप्रूव नहीं होगा तो उसकी वैल्यू नहीं होगी उस समय। ठीक है, नाउ see how we are going to proceed the class। okay, it is first we will define the scope of project कि project का scope क्या है। okay, then contractual requirements, what is the contractual requirement you need to take care in your work program। क्या क्या submissions होने चाहिए because there is n numbers of submissions, उसके against amount hold होता है, they consider a physical percentage also। a time cycles, a different time cycle for pile cap, peers and all। we have a creation of new project यूजर सेटिंग्स जो आपको नॉर्मल करनी रहती है क्योंकि प्राइमवेरा की डिफॉल्ट यूनिट कुछ और होती है, दिखता कुछ और है। WBS, it is a work breakdown structure। then we are going to have a calendar। in calendar we can see जिसको प्रॉब्लम है ना लीव कर सकता है। ओके, ऑपरेशन टीम, ठीक है। दिस इज नॉट माय फर्स्ट क्लास, आई ऑलरेडी टेकन 2 क्लासेस। ओके, तो इफ यू आर स्मार्ट एंड यू नो एवरीथिंग ना, come and teach me, I don't have any problem। okay,
नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अ कैलेंडर. कैलेंडर की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे वर्क प्रोग्राम में, ठीक है. जिसको साउंड प्रॉब्लम हो रिसेट करके वापस आ सकता है. देयर शुड बी अ ग्लिच ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, देन वी हैव अ कैलेंडर. We will go to calendar. Then we will take a example of 1 kilometer stretch of metro project. Then we go to the activity code. The 1 kilometer stretch project will complete from the design, from geotechnical to the last step of the construction. Then we will go to the activity codes, why activity codes are important in our project. Then we will go to resource creation. Then we have a resource assignment. We have a physical percentage, financial and physical S curve. Then we have a key performance indexes and baseline and progress update and reporting. We have a different type of reports when we can create from the Primavera. Okay, if time permit, we will discuss on the EOT of live project. See, rather उसके बाद हम जो चीज cover करेंगे, it is like we are going to see a highway planning. Okay, we are not taking in the part of Primavera, but we will discuss कि उसमें क्या क्या चीज consider होती है, because WBS design part everything is same. We will discuss the WBS of the highway planning, which required a plan and profile to identify where you require a cutting and filling, help to create a better WBS. Because in a highway there is a typical cross section. If you see a different cross section in the your tender drawing, like there should be a median in between, or you have a vehicle underpass, flyover. So based on those, we will divide our WBS. Then schedule B to identify the scope of work for the project. In highway project, there is a schedule B from where we will identify our scope of the project कि हमको क्या क्या करना है, कि how many minor bridges we have, how many major bridges we have, a culvert and all. A typical cross section for VLUP, flyovers and approach. Then we have a utility shifting, a shifting of utility and the fellings of tree cell by contractor or employer as per the contract document. In a highway, there is a project completion schedule base on milestone. There are mainly a 4 to 5 milestone. Then we have a contract price weightage. It is used to define your detailed WBS and your financial and the physical progress. तो उससे हम ये सारी चीजें डिराइव करते हैं. We will discuss this thing in detail when we go to our classes or we discuss. Then we are going to take a construction sequence for station and underground. A type of elevated station, normally we see a cantilever or portal pier type of station. Then we have a launching scheme. There is a different launching scheme for I girder and U girder. Then we will go to a D-wall construction for underground metro and launching shaft, a bottom up construction methodology for launching shaft, top down construction methodology for station, and bottom up construction methodology for station. So these are the major things we are going to cover in this session, and we will mostly focus on the elevated 1 kilometer stretch for Primavera work, and this will be we will discuss detailedly कि क्योंकि WBS once you created a WBS प्रोसेस सारी सेम रहने वाली है. तो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस हो गया या कुछ भी चीज होगी, उसी के बेसिस पे नेक्स्ट चीज आपकी डेवलप होती जाती है. क्यों आपने एक बार WBS डिफाइन कर दिया, आपने स्ट्रेचेस डिफाइन कर दिए, तो उसके बाद आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं. मेजर थिंग यही रहती है कि आपकी कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस क्या रहना है. इफ अंडरग्राउंड है तो आपकी कितने सारे ओपनिंग्स होनी चाहिए जिससे आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं, कि क्या आपकी मेथोलॉजी आप यूज करने वाले हैं. नाउ हाउ वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट प्लानिंग. ओके, तो प्रोजेक्ट इफ यू सी अ टेंडर डॉक्यूमेंट, देयर ऑलवेज अ प्रोजेक्ट स्कोप. दिस इज अ जनरल. I have taken some screenshot from metro project. इसमें आपको clearly mention है कि what is your obligatory span. Like obligatory span, it is a obligation on the contractor. You cannot change the length of that particular span or length, because it will be a some constraint like a land issue, or it is be an overpass over the railway bridges, or it is coming on two circles. So this is come as a obligatory span. Okay, now based on those things, from if you see 8.4.2, the contractor shall design and construct all viaduct special bridges, including the foundation, substructure, superstructure.
तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो नाउ यू गेट द एक्टिविटी फॉर द प्रोजेक्ट, नेमली पाइल कैप, a rough foundation we call as a open foundation also, pier cap, bearing, shear key and guide wall. Now if you see the next point, contractor shall carry out a utility trial trench at every pier location. That means you have to carry out the utility trench at every pier location. That's if you have a 200 pier, that means you need a 200 यूटिलिटी ट्रेंच. तो आपका वो यूटिलिटी ट्रेंच का स्कोप हो गया. सेम वे आपका जीटीआई वर्क्स का भी हो गया. फॉर contractor shall carry out the geotechnical borehole soil investigation at every pier location to verify the pile design. That means from that particular document दो चीज के स्कोप क्लियर हो गए. एक तो आपका यूटिलिटी ट्रेंचिंग का, दूसरा आपका जीटीआई बोरहोल्स आपको कितने करने, क्योंकि हर पियर लोकेशंस पे करने हैं. थर्ड आपके ऑब्लिगेटरी स्पान कितने और स्पेशल स्पान कितने, क्योंकि इफ यू सी अ कंक्रीट की एक लेंथ लिमिट रहती है कि 37 मीटर और 40 मीटर से ज्यादा आपका बॉक्स गर्डर नहीं हो सकता. आफ्टर दैट इट विल बी कंसिडर एज अ स्टील स्ट्रक्चर्स और आई गर्डर. तो वो सारी चीजें आपको कंसिडर करनी पड़ती है प्रोग्राम में. ओके, तो tentative quantity for the project planning for tender document. Now if you see, once you start your planning work, you should know the quantity of the project. Okay, without knowing the quantity, आपको एक स्ट्रेच की क्वांटिटी नहीं पता कि क्या स्कोप है, कितना, आपको पता ही नहीं कि कितनी पाइलिंग आ रही है, कितनी पाइल कैप है और कहाँ कहाँ क्या यूटिलिटी है. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर प्लानिंग वर्क यू शुड नो कि आपके पास वहां पे स्ट्रेच है कि नहीं काम करने का. ओके, इफ यू हैव अ स्ट्रेच टू वर्कआउट कि हाँ आपको वहां पे कोई यूटिलिटी शिफ्ट नहीं करनी है, आपको कोई यूटिलिटी हिंडर्ड नहीं कर रही है, तो आप वो चीज को कंसिडर कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग के लिए. और आप उस स्ट्रेच को पहले कंसिडर कर सकते हो. लाइक वहां पे कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है तो आप वहां पे पाइलिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, लॉन्चिंग नहीं कर सकते बिकॉज वो पियर लोकेशंस पे नहीं आ रही है. तो ये सारी चीजें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे. हर टेंडर डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग रहती है और ये चार्टेड और अनचार्टेड फॉर्म में रहती है. चार्टेड यूटिलिटीज दोज यूटिलिटीज जिसको प्रोजेक्ट में आपके टेंडर ड्राइंग में दिया हुआ रहता है. अनचार्टेड व्हेन वी आर डूइंग यूटिलिटी ट्रेंचिंग, तो जो चार्टेड मतलब यूटिलिटी चार्ट नहीं होती आपकी टेंडर ड्राइंग में, उसको हम अनचार्टेड यूटिलिटी बोलते हैं. तो उसके बेसिस पे हमारे सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं, बट वी नीड टू कंसिडर कहाँ का मेजर यूटिलिटीज आ रही है. ये सारी स्कोप्स हमारी टेंडर ड्राइंग से निकालेंगे जब हम हमारी क्लास में आएंगे, जब हम डिस्कस करेंगे. बिकॉज आई कैन नॉट ओपन ऑल द टेंडर ड्राइंग्स राइट नाउ एंड वी विल सी इट. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशंस, कि आपको लैंड कब मिलना है. बिकॉज विदाउट नोइंग कि आपको लैंड कब हैंड ओवर होगी, आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको लैंड पता होना चाहिए कि कितने दिन में एज पर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी. इफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, a contractor right of access for 2 kilometer will be hand over within 30 days from the commencement date. Okay, and the right of access to the casting yard of 20,000 square meter within 20 kilometer from the alignment shall be given free of cost within 30 days from the commencement date. Then a third point is a scheduled right of access for remaining stretch will be given in line with the requirement of the approved program. Okay, once your program get approved, तभी आपको आगे की लैंड उसके हिसाब से मिलेगी फेज वाइज. बिकॉज वी कैन नॉट गेट 100% लैंड ऑन 0 डेट और 30 डेज. देन रिव्यू बाय इंजीनियर, व्हेन यू आर डूइंग अ डिजाइन प्रोग्राम, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रिव्यू पीरियड. ओके, अ रिव्यू पीरियड मींस अ पीरियड नॉट एक्सीड 21 डेज. तो यहाँ पे 21 डेज का टाइम पीरियड है और कभी कभी 28 डेज का भी रहता है. तो डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या आपका कैलेंडर है और कितने अप्रूवल टाइम्स है. ये आपको कंसिडर करना पड़ता है. इफ यू वांट टू डू अ पाइलिंग ऑन 23rd of July, तो आपका ड्राइंग एटलीस्ट एक महीना पहले सबमिट होना चाहिए, क्योंकि उसका अप्रूवल का टाइम आपको प्रोग्राम में लेना है. क्योंकि एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन आपको वो सारी चीजें दिखानी है. अ रियलिस्टिक प्रोग्राम कैन बी डिफरेंट, बट आपको जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क प्रोग्राम है उसमें अप्रूवल एज पर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट लेना है. नाउ व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कैलेंडर्स, like for project a contractor shall adopt a 7-day a week calendar, an identical calendar for the purpose of programming and execution of work. मतलब आपके execution के लिए तो 7 day calendar बोल रहा है, but
ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो भी आपका ड्राइंग्स हो गया या भी आप किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहे हो उसके लिए 5 डे वर्किंग ही कंसिडर किया जाएगा। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपका एग्जीक्यूशन का कैलेंडर अलग होगा और आपका डिजाइन का कैलेंडर अलग होगा। नाउ मानसून कैलेंडर, इफ यू आर वर्किंग अराउंड द रिवर एरिया तो आपका रिवर का कैलेंडर अलग होगा। तो ये सारी चीजें होती है। नाउ इफ यू सी यहाँ पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा तो इधर क्या दिया हुआ, एक्टिविटी ड्यूरेशन शेल नॉट एक्सीड 2 वीक। ओके, तो जब आपको यही नहीं पता कि आपको क्या टाइम लिमिट रखनी है, क्या चीजें रखनी है, ओके, तो उसके बेसिस पे आपको चीजें लेनी पड़ती हैं कि आपकी क्या टाइम लिमिट होनी चाहिए। ओके, नाउ सम थिंग्स फॉर पाइल लोड टेस्ट। अगर आपको यही नहीं पता है कि कितने किलोमीटर पे पाइल लोड करना है, क्या कितने डायमीटर के ऊपर पाइल लोड टेस्ट करना है, क्या क्या चीजें हैं, तो यू कैन नॉट प्रोसीड फर्दर फॉर योर पाइलिंग वर्क। तो उसका गैप नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि आपको अगर पाइल लोड टेस्ट करना है तो इट शुड बी अ सफिशिएंट गैप फ्रॉम योर वर्किंग पाइल, क्योंकि आप वर्किंग पाइल पे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको टेस्ट पाइल कास्ट करना पड़ेगा। तो दिस थिंग क्लियरली मेंशन इन योर कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कि आपको टेस्ट पाइल कितनी लोकेशंस पे करनी है और कितना मतलब क्या रेंज में करनी है, 1 किलोमीटर फॉर ईच टाइप ऑफ पाइल यू हैव टू डू इट। तो ये सारी चीज होगी। नाउ फॉर अ पाइल कैप, अगर आप मैनुअल चिपिंग कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोग्राम कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, आपने फिनिश टू स्टार्ट दे दिया, आपने कोई डिफरेंस नहीं दिया या आपने कोई एक्टिविटी नहीं डाली है, तो आप कॉन्ट्रेक्चुअली उसको गलत कर रहे हो, बिकॉज 3 days मैनुअल चिपिंग के लिए रिक्वायर्ड रहता है और बाय मशीन इट्स रिक्वायर्ड 7 days। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें दी हुई रहती है आपको। जब ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सफिशिएंट गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिंक कर दिया, आपको सब लिंक करना बता देंगे, बट दोज थिंग यू शुड बी इन योर माइंड कि कुछ गैप होना चाहिए एज पर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस आल्सो। ओके, नाउ व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट प्लानिंग, आपको उसके मिनिमम रिसोर्सेज भी पता होना चाहिए प्रोजेक्ट में, बिकॉज आप कभी एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम करने गए तो आपके रिसोर्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फर्स्ट थिंग वो आपको बोलेगा कि आपने रिसोर्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाए, आपके मिनिमम रिसोर्सेस नहीं थे, तो नाउ यू हैव टू फर्स्ट इंक्रीज द रिसोर्सेस। तो आपको आपके रिसोर्सेस भी चेक करने हैं कि कितने नंबर्स ऑफ लॉन्चर है, कितने नंबर्स ऑफ बैचिंग प्लांट है, कितनी पाइलिंग रिग मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितनी क्रेन। तो आप क्या होता है, जब भी प्रोग्राम अगर डिले होता है तो इन सारी चीजों पे आप कंसीडर कर सकते हैं, उसके बेसिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं कि आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करने हैं। क्या मतलब आपके पास पता है कि कास्टिंग बेड 4 है, तो 4 कास्टिंग बेड है, तो मंथली यू कैन कास्ट अ 4 to 5 स्पान। तो उसके बेसिस पे आपको मिनिमम रिसोर्स, ये सब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर रहता है। ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। हर प्रोजेक्ट के अलग अलग रिसोर्स रिक्वायरमेंट रहती है। नाउ दिस इज अ work breakdown structure we are going to follow for a 1 kilometer stretch. It is like first we have a key milestone. We always start from the key milestone. Then we'll follow with employer obligations, because everyone want to see your milestones, then employer obligation, then contractual submission, then general submission में आपका ड्राइंग्स आ जाता है, आपका टोपोग्राफिक ड्राइंग, ऑब्लिगेटरी स्पान, प्रिलिमिनरी डिजाइन, देन यू हैव अ जीटीआई वर्क्स, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, देन हमारा जनरल एक्टिविटी हो जाता है जो हमारा कास्टिंग आर्ट सेटअप, मोबिलाइजेशन, इनिशियल पाइल लोड टेस्ट, ये सारी चीजें। नाउ फॉर वायडक्ट वी हैव a different set of activities starting from the site clearance, a general, we have a civil design, utility diversion, precast, construction. In construction our activity start from the piling, pile cap, pier cap, we have a pier pedestal, crash barrier, span erection and obligatory span, bearing fixing, parapet erection, expansion joint, cable trough and restatement work. This is the simple WBS for our project what we are going to follow. Next thing, a consideration for program. Now we are talking something like आपको किस हिसाब से मोबिलाइजेशन करना है, ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली मोबिलाइज कर सकते हैं। नाउ based on the land handover we have planned the program. Okay, delay in land handover में delay work accordingly। हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल 2 किलोमीटर लैंड हैंडओवर, आपने अभी हमने देखा कि इनिशियल 2 किलोमीटर कब है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा 15 दिसंबर को इनिशियल हैंडओवर था, तो मैं पहली रिग मोबिलाइज कर लूंगा 15 तारीख को, बट मैं अपने प्रोग्राम में कंस्ट्रेंट मतलब डाल रहा हूँ और क्लाइंट को ही बता रहा हूँ कि राइट ऑफ एक्सिस ऑफ 2 किलोमीटर लैंड, a mobilization of second and third rig is planned
आफ्टर द हैंडओवर ऑफ 2 किलोमीटर, मतलब मैं सेकेंड एंड थर्ड रिग जब मोबिलाइज करूंगा तब आप मेरे को पूरी लैंड दे देंगे। ओके, वंस अ लैंड अवॉर्डेड टू यू और हैंड ओवर टू यू, देन मैं रिसोर्स को मोबिलाइज करूंगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है कि अगर लैंड डिले हुआ तो वो ये नहीं बोल सकता कि आप रिसोर्स लेके नहीं आए, क्योंकि आपने प्रोग्राम को प्लान ही उस वे में किया है कि जब मेरे को लैंड मिलेगी तब जब मैं आगे के रिसोर्सेज लाऊंगा। नाउ हाउ वी कंसीडर द मोमेंट, तो ये मेरा सिंपल स्ट्रेच डायग्राम है। मैं क्लाइंट को बताऊंगा ये मेरा प्रायोरिटी सेक्शन है जिसका आप मेरे को 15 दिसंबर को लैंड दोगे, एंड हाउ आई एम गोइंग टू मोबिलाइज माय रिसोर्सेज। आई विल मोबिलाइज फर्स्ट रिसोर्स एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन एट डीबी सिटी मॉल, then second I will mobilize at Kendriya Vidyalaya, then I will third will I install at Subhas Nagar, एंड फोर्थ आई विल इंस्टॉल एट एम्स। तो मैं इस हिसाब से जियो टेक्निकल करूंगा। नाउ क्लाइंट विल आस्क कि आप इतने डिस्टिंग्विश वे में क्यों कर रहे हो, बिकॉज अ जियो टेक्निकल प्रॉपर्टी कैन वेरी फ्रॉम 1 किलोमीटर और इवन अ सर्टेन लेंथ इट कैन बी चेंज। तो मैं बोलूंगा कि मेरे को सारी मतलब फॉर 6 किलोमीटर आई कैन नो दी जियो टेक्निकल कंडीशन, तो इस हिसाब से मैं मशीनरी को प्लान कर रहा हूँ। ओके, तो दिस इज अ सिंपल अ मोमेंट। हम जब इसको आगे जाएंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे किस हिसाब से हम सारी चीजें लेते हैं। नाउ अ कास्टिंग एट सेगमेंट डिटेल्स, लाइक इफ यू आर डूइंग अ 37 मीटर स्पान तो उसमें नंबर ऑफ स्पान आपके 13 रहते हैं, एंड दिस इज अ नॉर्मल क्लेचर कि आप उसको क्या क्या नाम देते हैं। सी एवरी प्रोजेक्ट हैव अ डिफरेंट नेम, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यही फॉलो करना है, कहीं कुछ और हो सकता है कहीं कुछ, बट इट इज अ सिंपल नॉमेनक्लेचर की सेंटर आप एक S7C देके अप एंड साइड, एक अप साइड होता है एक डाउन साइड रहता है, तो ये नंबर ऑफ डे उसके बेसिस पे मैंने कंसिडर किया हुआ है। नाउ इफ अ 37 मीटर स्पान, तो 37 मीटर स्पान में आपके सारे स्पान आएंगे। इंटरमीडिएट स्पान 3 मीटर का होता है और आपका पियर सेगमेंट 1.95 मीटर का होता है। देन फॉर इफ यू आर डूइंग 34 मीटर तो सेंटर स्पान आपका आप कास्ट नहीं करेंगे। तो दिस इज अ वे यू कैन स्टार्ट स्किपिंग द सेगमेंट कि आपको क्या कास्ट करना है क्या नहीं करना है। दिस इज अ नॉमेनक्लेचर वी फॉलो while we are doing the casting of work. Okay, नाउ दिस इज अ मैच कास्टिंग एक्टिविटी कि जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम कैसे काम करते हैं। नाउ ऑन लॉन्ग बेड वी विल स्टार्ट अवर कास्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पान, क्योंकि वी कैन मूव ऑन बोथ डायरेक्शन। ओके, तो वी हैव अ S7C, then we will cast our segment based on those detail कि we have a S5U, then we have a S5D. Okay, so this is a sequence we do for our casting of project. We generally call say the match casting for segment casting. So this is the way we complete our span. From the below diagram we can see कि हमारा जो भी डायग्राम रहेगा उस हिसाब से हम कास्टिंग मींस फ्रॉम दैट कि हाउ मच स्पान वी रिक्वायर्ड टू कास्ट, आप एक बेड पे कितना स्पान पर मंथ कास्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। नाउ इट इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर वेयर वी विल डू फ्रॉम pile cap, we have a crush barrier, pier cap, seismic arrestor, pedestal, and segment span erection. We divided into three parts like foundation, substructure, and superstructures. Now, if you see, it is a general methodology for a piling. If I am considering any time cycle, so I should know the detail activity because I cannot generalize the time frame ki ek din lagega because I need a breakup. If I am starting from the case punching to boring, how much time is required? Like if from boring to concreting, it taking a 1 day time, तो मेरे को boring में कितना time लग रहा है? It may be a depend on the depth, but average if we take a 30 meter, so from 8 to 12 hours we can have our boring time, then 3 to 4 hour lowering of cage, and after a trimming lowering we can do our concreting work. So this is a general a sequence of the piling activity. Will never take a activity like reinforcement, then cage lowering or boring. We will take a piling as a group because if you are consider a project on a bigger length, ओके तो उसमें क्या होगा कि जब आप ये सारी चीजें को डिटेल में ब्रेकअप करते आएंगे, योर एक्टिविटी विल गेट इंक्रीज और आपको मॉनिटर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो
एक्टिविटी शुड बी लाइक दैट जिसको आपके साइट या साइट एग्जीक्यूशन वाले वो डेट प्रोवाइड कर सकें, बिकॉज आपको बोरिंग की डेट मिलना थोड़ी मुश्किल हो सकती, बट यू कैन गेट द कॉन्क्रीट डेट ऑफ द पाइलिंग. तो यू कैन डू विथ अ ग्रुप कि आपने एक ग्रुप का कब स्टार्ट हुआ. तो वी जनरली डू अ प्लानिंग फॉर अ ग्रुप वाइज एक्टिविटी लाइक अ पाइल ग्रुप, बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ पाइल ग्रुप वन, लाइक फिर आपको नॉमेनक्लेचर भी ऐसा देना पड़ेगा कि आई एम डूइंग अ P1 का पाइल नंबर 3. तो वो नॉमेनक्लेचर आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है. तो प्रोग्राम की एक्टिविटी वहां तक डिवाइड करें कि आपको इतना प्रॉब्लम नहीं हो उसको मॉनिटर करने में और आपको डिटेल साइट से मिले, बिकॉज आपको प्रोग्राम की डिटेल्स भी साइट से चाहिए कि कब एग्जीक्यूट हुआ है. ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ प्रोग्राम बना दिया है. ठीक है. तो दिस इज अ सी वी आर गोइंग टू सी ऑल टाइम साइकिल विथ लाइक दैट, लाइक पाइल कैप पियर एंड ऑल. Then it is a project construction sequence, how it's work. Like if you see a project construction, first we get a site from the client. Without getting a site from the client, we cannot start any work. Okay, it is a mandatory thing, it is an employer obligation. We will get a land from the client, then we can go for further work. Like we have a two type of work in Viaduct project. One is your casting yard setup, which is a parallel activity with your site work. And हमारे site work पे start होगा a primary survey वर्क, जो भी आपका क्लीनिंग ग्रबिंग हुआ या भी आपका मीडियन का डिसमेंटलिंग और आपका ग्राउंड क्लियरेंस वर्क हुआ, तो दैट कम एज अ प्राइमरी सर्वे वर्क. देन वी हैव अ बेरिकेशन. बेरिकेशन के बाद वी विल डू अ soil investigation and utility identification. Then we have a shifting of utility. After shifting of utilities or parallel, once we get our GTI report, we will go to a test pile casting. Then we have a testing of vertical and lateral load test. Then we will go to a pile foundation. Okay, pile foundation, pile cap, pier cap, and erection of segment. Erection of segment will connect, interlink with the stacking and a segment transportation जो आप casting yard में cast कर रहे हैं. Then the pre-stacing of span and grouting, alignment and bearing, parapet erection, cable trough, restatement of site and handing over of the project. Okay, now a type of program. If you see there are n numbers of program. If you see a design build, item rate, your engineering procurement, especially you have a design program, you have a procurement program, you have interface program. If you are working with a system contractor, you need to have an interface program. Then you have an initial work program and detail work program. This is a simple example of activity ID, which we will discuss. Like when we are going to get any activity ID, it should be like a package name. First we will start कि आपका पैकेज का क्या नाम है. Then we have a section name कि आप किस, मतलब if you have a 10 stretches in station, तो आप उसको stretch का नाम देते हो. Then you have a sub activity codes like peer cap. Then you have a running numbers. See, a design activity, normally जब हम design activity लेते हैं तो उसका WBS कैसे define करते हैं. Okay, once we receive a NTP for work, a 3 activity will start for the project. ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग एक्टिविटी एक साथ चालू नहीं कर सकते, बट डिजाइन क्या होता है, सबसे पहले आपका GPR सर्वे और आपका टोपोग्राफी सर्वे एक पैरेलल एक्टिविटी. देन यू हैव अ सॉइल इन्वेस्टिगेशन, आपका पैरेलली चलेगा. एंड यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन. ओके, अब यूटिलिटी आइडेंटिफिकेशन क्यों करना है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन क्यों करना है, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ आपका लिंक रहता है. बिकॉज अ यूटिलिटी डाइवर्जन आपको आइडेंटिफाई नहीं किया तो स्पान कॉन्फ़िगरेशन अप्रूव नहीं होगा. योर स्पान कॉन्फ़िगरेशन अप्रूव नहीं हुआ तो आपका ड्राइंग्स अप्रूव नहीं होगी. तो आपको यूटिलिटी आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है कौन सी यूटिलिटी डाइवर्ट करनी पड़ेगी और कौन सी यूटिलिटी नहीं करनी पड़ेगी. यू कैन प्रोटेक्ट इट. उससे आपका अलाइनमेंट में कुछ चेंज आ रहा है, आपका स्पान अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, तो ये डिजाइन का प्रोसेस चलता है. अब बेस्ड ऑन सॉइल इन्वेस्टिगेशन यू कैन गेट द टेस्टिंग एंड रिपोर्ट. Then you have a submission of load test drawing, then a construction and test on the initial pile load test, then uski report submission, then we have a construction drawing. And as a survey we go to a GPR survey, फिर आपका validation of employer points जो भी रहते हैं, then completion of topography survey. So these are the major activity for design which we consider in our design build program. Now if you see advantage of Oracle Primavera. See, Primavera P6 mitigate the risk. A Primavera P6 very easy to use if you know everything. Like
आपको एक्टिविटी कोड्स पता है, यू नो द रिसोर्सेस, रिसोर्स असाइनमेंट, a great visibility because all the thing is generated from the Primavera. If you see the concrete, you see the key performance index for peer, then progress percentage, easy to create a forecast and break down your complex project. Like if you are divided activity codes, you can filter it out your project based on those activity codes and you get those detail only. इस project specific आप उसमें आपका फाइनेंशियल एस्कर हो सकता है, आपका कॉन्क्रीट हो सकता है, या आपका फिजिकल एस्कर हो सकता है. इन आवर प्रोजेक्ट वी आर गोइंग टू गिव एस्कर बेस्ड ऑन आवर वेटेजेस एंड फॉर फाइनेंशियल वी हैव अ बीओक्यू. तो हम बीओक्यू की बेसिस पे वो सारी चीजें देंगे. Okay, see, if you want in last class what we have created, okay, I will close it. See, we are going to have हमारा प्रोग्राम में cost loaded होगा and we have a like cost. Here we have a cost, we have a weightage. ये हमारा weightage हो गया and it is a cost means a weightage is for your physical percentage and cost. Second thing, you have a quantities like material quantity, we have a wider resources जो हम normally आप सबने देखा होगा कि see it is a your quantity per month distribution. We will go and assign कि आपका monthly distribution क्या होगा. See it is a your piling distribution. आपका अक्टूबर मंथ में यू आर डूइंग अ 7 पाइल, इन मंथ ऑफ नवंबर यू आर डूइंग अ 48 पाइल. तो वी आर गोइंग टू क्रिएट सेम थिंग इन आवर क्लास. ये सारी आपको यहाँ से क्वांटिटी मिल जाएगी. इफ दिस इज योर एक्चुअल क्वांटिटी, ये आपका प्रोजेक्ट वेटेजेस हो जाएगा एंड वी हैव अ प्रोजेक्ट कॉस्ट. देन वी हैव अ कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट. वी हैव अ कंक्रीट. तो हियर वी विल गेट अ योर कंक्रीट कि आपका पर मंथ कितना कंक्रीट आ रहा है. सी इफ यू हैव अ आइटम रेट प्रोजेक्ट तो आपको कंक्रीट के बेसिस पे अमाउंट मिलता है. तो यू हैव टू पुट दोस थिंग कि आपका 200 एम क्यूब है तो 200 एम क्यूब को 6000 इंटू वो आपका कॉस्ट आएगा. तो ये सारी चीजें भी हम इस पूरे मतलब इट विल बी अ रिसोर्स लोडेड प्रोग्राम. ये जितने रिसोर्स हैं इट इज अ सैंपल प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने क्रिएट किया था. तो दिस वी आर गोइंग टू हैव इन आवर क्लास की ये सारी चीजें करेंगे. एंड इट इज लाइक वी आर गोइंग टू क्रिएट अ एक्टिविटी ड्यूरिंग आवर प्रोजेक्ट कि क्या क्या चीजें आपको कंसिडर करनी है. इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क. और जिसको फालतू क्वेश्चन पूछने है उसका मैं जवाब नहीं देने वाला, जो जिनको प्रॉब्लम है, इशू है. ओके see program, it is a demo class. People need to understand the demo should not be a proper class like जहाँ पे हम theoretical और सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे. It is a demo what we are going to cover in a 30 hour. If you want to learn in one day, it is nearly next to impossible. एक घंटे में आपको सारी चीजें. See a thing which we are going to cover, मैं वो चीज बताऊंगा कि डेमो क्लास में हम क्या मतलब एक्चुअल क्लास में क्या क्या कवर करेंगे. इफ यू वांट कि क्या क्या चीजें होंगी तो आई हैव अ पूरा कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस है मेरे पास. तो कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में यहाँ पे अभी डिस्कस करने जाऊंगा तो ओनली अ पाइल एंड पाइल का विल बी कवर इन
2 days. What is different between MS Project and P6? See, a Primavera and MSP, everything is depend upon the client requirement. If a client requirement required MSP project, they will go for MSP project. See, you can do a cost loading there, resource loading, but a Primavera I feel a safer side because इसमें फाइल सेव नहीं होती है. अगर यू आर डूइंग समथिंग तो यू ओनली नो, बट आपको किसी और ने गलती से कुछ चीज डिलीट करके वो फाइल सेव कर दी तो एमएसपी में प्रॉब्लम आ सकती है. हियर वी हैव अ फिल डाउन ऑप्शन इन रिसोर्सेस. ओके, तो ये सारी चीजें हैं. आपको एमएसपी में कितनी बेसलाइन क्रिएट कर सकते हैं. नाउ आई एम वर्किंग ऑन प्राइमवेरा, तो मेरे को प्राइमवेरा इजी लगता है. कुछ लोग एमएसपी पे वर्क करते हैं, उनको एमएसपी अच्छा लगता है. अभी हमारा नया सॉफ्टवेयर आ रहा है जो है हमारा बेंटले का सॉफ्टवेयर है, जो 4D पे चलता है. उसके लिए आपको ऑटोकेड ड्राइंग्स होनी चाहिए आपके पास. हाउ कैन वी प्रैक्टिस एट आवर होम आफ्टर लर्निंग? सी, आई विल शेयर यू what I will show you. I will have a folder. This is the program. You have a contract document, you have a tender drawing, you have a tender document. अब उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए. For yeah, it's include hands-on practice of Primavera, because see, a theoretical part is also required to understand, because some people are experienced, some people are new, उनको time cycle नहीं पता है. तो we will do linkages live, and if some activity is more like contractual submission, I will add first and we will discuss. We will go milestone by milestone. This is the present whatever I am showing you, it is from the current last project we have taken. तो ये सारी एक्टिविटी हमने उसमें ली थी, क्रिएट की थी, वी हैव लिंक इट. तो उस टाइम में आपके ऊपर जो भी डाउट होता है, वॉट एवर द प्रॉब्लम यू फेस, इवन आफ्टर द एंड ऑफ क्लास आप मेरे से पूछ सकते हैं. वी विल डिस्कस इट. आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो हमने वो भी डिस्कस करी कि हाँ, वी हैव सबमिटिंग द ईओटी, ये प्रॉब्लम आई है हमारे प्रोजेक्ट में, ये हमको रिप्रोग्राम सबमिट करना है. तो अ पर्सन शुड नो कि डेमो क्लास में आप वो सारी चीजें कवर नहीं कर सकते हो जो एक रियल क्लास में होगी. इफ मैं पूरी चीजें इसमें करने लग जाऊंगा तो वो एक टॉपिक पे ही पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा. तो वी विल क्रिएट अ 1 किलोमीटर का पूरा एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे विच इंक्लूड दोज एक्टिविटी, लाइक द वे आई एम डूइंग द सिक्वेंसिंग. ओके, कि मेरी सिक्वेंसिंग कैसी है, फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम साइड क्लियरेंस. साइड क्लियरेंस में कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, मैं क्यों ले रहा हूँ, वो उसका पर्पस क्या है. ओके, दिस इज द, वी विल डिस्कस द पर्पस आल्सो. ऐसा नहीं है मींस सी सम एक्टिविटी मे भी मिस कर सकता हूँ, इट्स नॉट फिजिबल, क्योंकि मैं कुछ प्रोजेक्ट क्लाइंट के बेसिस पे भी बनते हैं कि क्लाइंट को कुछ एक्टिविटी चाहिए कि नहीं चाहिए. तो ये सारी चीजों के बेसिस पे प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं. What is the constraint? How we can adjust in planning? See, constraint. Why I am going to a resource part? क्योंकि आपको पता होना चाहिए. If you are mobilizing only a 3 rig, okay, तो आपकी 3 rig की कैपेसिटी कितना है? You cannot do a 3 rig से आप 150 पाइल कर सकते हो. आप 3 rig से 70 पाइल, 75 पाइल, अगर आपका दिन का प्रोडक्टिविटी 1 है, ओके, तो प्रोडक्टिविटी बेस पे चलता है. आपको पता है कि मेरे पास 2 ही लॉन्चर है, एक लॉन्चर महीने में 5 स्पैन ही इरेक्ट कर सकता है. तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग मोर देन 10, मतलब आप उसको 15 नहीं कर सकते. ड्यूरिंग अवर लेक्चर वी विल द लेक्चर विल कंडक्ट ऑन वीकेंड. इफ पॉसिबल प्लीज शेयर द टेंटेटिव शेड्यूल. See, I have asked to have class on Thursday, Friday, and Saturday for 2 hours. Previously, we have a 1 hour classes. In regular class, we will give a training on. See, metro is our main focus, and we will discuss a sequence and all things for highway and for underground metro, because building they have a different course. It means infrastructure mainly consist of metro, highways, and your underground metros. Building irrigation उनके अलग कोर्स हैं, तो it will be not a part, but we will discuss, because मेरा मैं एक्सपीरियंस भी नहीं है. आई विल एलिवेटेड का है, अंडरग्राउंड का है और हाईवेज का है, तो वी विल डिस्कस दोस थिंग.
बट कोई प्रॉब्लम होती है तो वी विल डिस्कस, अगर वो जेन्युइन है हम डिस्कस कर सकते हैं, किसी के इनपुट्स हो सकते हैं. See, course will be a 1 month course. It's not like we will cover a 2 hours. Can you please discuss what we can learn in 30 hours from highway project? See, highway project, if I share, this is the thing which we are going to see, like cutting, filling, कैसे मतलब सी आई हैव अ प्रेजेंटेशन फॉर दैट की सी शेड्यूल बी में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो. फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द स्कोप. आप ऐसा नहीं है कि आपको आपने साइट पे काम कर लिया तो आपको सारी चीजें पता है. आप यू हैव टू गो टू टेंडर डॉक्यूमेंट, क्योंकि किसी प्रोजेक्ट में कुछ चीज होती है. इन माय करंट प्रोजेक्ट आई डोंट हैव पैरापेट, मेरे को नॉइस बैरियर है, तो मैं बिना कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पढ़े नहीं जा सकता ना. इवन इन रोड प्रोजेक्ट आजकल आपने देखा होगा नॉइस बैरियर लगते हैं, इवन देयर इज अ बैरिकेशन फेंस देयर. तो आप जब तक ड्राइंग स्कोप ऑफ वर्क नहीं देखेंगे यू कैन नॉट डिफाइन योर स्कोप. तो हम वो चीज डिस्कस करेंगे. देन टिपिकल क्रॉस सेक्शन देखेंगे, उसके बेसिस पे हम डब्ल्यूबीएस डिसाइड करेंगे कि हमको, क्योंकि क्या होता है हाईवे प्रोजेक्ट में आपका स्ट्रक्चर वर इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के आसपास ही आप अप्रोच कर सकते हो. जब आपने स्ट्रक्चर के एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हो, देन उसका प्राइसिंग अब वेटेजेस रहेगा. क्योंकि सी मेन थिंग उसका वेटेज आप कैसे डिवाइड करते हो, क्या क्या एक्टिविटी आप लेते हो, क्योंकि आपका जो वेटेज है वही सारी एक्टिविटी आपके प्रोग्राम में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए. आई विश माई एक्सपर्टीज टू यूटिलाइज प्राइमवेरा फॉर ईओटी एंड क्लेम. सर इफ आई से प्राइमवेरा हम लोग सबमिट करते हैं, बट इन दी एंड अब आज तक इंडिया हिस्ट्री में लास्ट में वो आ जाते हैं आपके एक्सेल पे ही, बिकॉज nobody want to go in those detail because a number of links. तो आप हम लोग ईओटी सबमिट करते हैं प्राइमवेरा प्रोग्राम पे, वी विल सबमिट ईओटी, बट इन दी एंड जो फाइनल डिस्कशन और जो भी रोल आउट होता है वो आपका क्या होता है, प्राइमवेरा से एक डेट आ जाती है. ओके, इन इफ यू डूइंग अ विंडो एनालिसिस, आपने क्या किया, एम्प्लॉयर के डिले डाले, आई हैव डन, और मैंने वो भी किया है. आपने एम्प्लॉयर के डिले डाले, देन आपने प्रोग्राम अपडेट किया तो एक डेट आई, तो आप क्या बोलोगे, ये डेट आ रही थी, मैंने इस दिन पे अपडेट किया तो ये डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, तो हाँ आई एम सेइंग द डिले एनालिसिस पार्ट. तो डिले एनालिसिस पार्ट में आपका जब वो चीजें होती है, मैं वही बोल रहा हूँ कि डिले एनालिसिस कि आपका जो भी डिले एनालिसिस है वो कैसे होता है कि आप जब भी करने जाते हैं तो पहला प्रोग्राम आप क्लाइंट के डिले डालते हैं. नाउ इफ वी हैव अ कोविड, लाइक सेकेंड वेव आया कोविड का, तो वी टेक सम विंडोज इन प्राइमवेरा, हम उसको सबमिट करते हैं. फर्स्ट हम उसके डिले डालते हैं तो एक डेट आती है, देन वी विल अपडेट अवर प्रोग्राम, वी विल गेट दैट. तो वो कुछ डिफरेंसेस आते हैं, फिर हम बोलते हैं कि आपके चक्कर में डिले, क्योंकि हम उसमें विंडोज बाय विंडोज करते जाते हैं, उसमें ये चेक करते हैं कि किसका डिले ज्यादा है, इट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर साइड और क्लाइंट साइड. अगर क्लाइंट साइड का डिले ज्यादा है तो वी विल क्लेम एक्सटेंशन ऑफ टाइम बेस्ड ऑन दोस विंडोज कि इतना डिफरेंस आ रहा है, आई एम एलिजिबल फॉर ईओटी. लाइक आपके आपके डिले से डेट फरवरी आ रहा है बट आई कंप्रेस टू दिसंबर, तो आप मेरे को दिसंबर तक एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे दो क्योंकि मेरा डिले नहीं है. तो वी कैन डू इट दोज थिंग, बट उसके लिए फिर आपको पूरा प्रोग्राम रिसोर्स लोडेड ये सारी चीजें करके आपको प्रोग्रेस एक्चुअल अपडेट करना पड़ेगा. जब आप ये चीज करने जा रहे हैं तो यू शुड हैव अ प्रॉपर प्रोग्राम. मतलब प्रॉपर प्रोग्राम बोले तो आपको सारी अपडेट भी प्रॉपर होनी चाहिए, फिर आपका डिजाइन भी होना चाहिए, तो वो सारी चीजों पे होता है. ठीक है, सी सर्टिफिकेट सर ये आपको प्रो ट्रेनिंग वाले ही बता पाएंगे. हाउ वी कैन डू अ रिसोर्स लोडिंग, हाउ कैन वी मेक द प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय अपलोडिंग रिसोर्स, प्लीज एक्सप्लेन. सी इफ आई शो यू अ कॉस्ट पार्ट, तो आपका कॉस्ट क्या है, इफ इट इज आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका यूनिट जो भी आपका यूनिट रहता है उसके बेसिस पे आप मैच करवा सकते हो. इफ आई शो यू कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, मेरा कॉस्ट कहाँ है, ओके, दिस इज माय कॉस्ट. तो मेरे को पता है मेरा एम्प्लॉयर ऑफिस का अगेंस्ट में इतना अमाउंट मिलना है, तो दिस इज माय अमाउंट. आप दो कॉस्ट होती है, एक आप कितना इनकर्ड कर रहे हैं. तो इन एनी लेक्चर में हाँ रिकॉर्डिंग इज देयर, हाउ डू वी रिकॉर्डिंग रहेगा, बट हाउ वी कैन मैच बाय, हाँ अपलोडिंग रिसोर्स में वही बोल रहा हूँ. सी अगर ये आपका बजटेड यूनिट है, इफ यू नो
दो चीज से कॉस्ट होती, एक आप आपकी एक्चुअल कॉस्ट डाल रहे हो जितना आपको एम्प्लॉयर ऑफिस बनाने में लगा, सी एक्स अमाउंट आपको मिल रहा है और वाई अमाउंट आप लगा रहे हो। तो अगर वो आपके पास डिटेल है तो आप डालोगे तो कर सकते हो। नाउ इफ यू आर आस्किंग अबाउट इनवॉइस पार्ट की 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 200 करोड़ कैसे आप इंस्टॉल करोगे, तो ये बीओक्यू आइटम्स है। इफ यू सी हमारा रिसोर्स ही हमने वैसे बनाया बीओक्यू आइटम्स पे, जो आप बात कर रहे थे कि मेरा एम्प्लॉयर ऑफिस हो गया, ओके, मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफिस हो गया, प्रोविजनल फॉर सेफ्टी एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, क्वालिटी मैनुअल, इंटरफेस मैनेजमेंट प्लान। तो ये सारी चीजें मेरे को प्रोग्राम में एक्टिविटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके अगेंस्ट में मेरा अमाउंट है तो उसी की एक्टिविटी के अगेंस्ट में मैं डाल सकता हूँ। इफ आई शो यू हाईवे प्रोजेक्ट, मेरे पास हाईवे प्रोजेक्ट भी होगा, ओके, एंड इट इज अ लाइव प्रोजेक्ट जो दिल्ली वडोदरा का एक्सप्रेस वे है जिसमें टनल है कोटा में। तो वो उस प्रोजेक्ट का है। इफ आई शो यू रिसोर्स असाइनमेंट, आप ये देख रहे हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, मेरा फ्लेक्सिबल पेमेंट है, तो उसमें अर्थवर्क आ गया, अर्थवर्क इन शोल्डर, जीएसबी, डब्ल्यू बीएम लेयर 1, बीएम लेयर 2, 3 एंड वियरिंग कोड। तो इस हिसाब से वो रहता है। अभी इसमें फिल्टर है या कुछ होगा, ये आपका कॉस्ट आ गया। इट इज योर प्रोजेक्ट क्वांटिटी कि आपकी क्या क्या है। नाउ इट इज योर प्रोजेक्ट वेटेजेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको है कि आप जो हम डिस्कस करेंगे, जो आप शेड्यूल एच रहता है उसके बेसिस पे आपको रिसोर्स क्रिएट करना है, ओके। तो रिसोर्स क्रिएशन ही मेन चीज है। अगर आपको पूरी कॉस्ट अपलोड करनी, इफ यू वांट टू लोड 100 करोड़, तो 100 करोड़ लोड करने के लिए आपको पूरा रिसोर्सेस उस हिसाब से डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेस, इफ आई शो यू, मेरे पास एन नंबर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं प्रोजेक्ट में, ओके। सी दिस इज माय रोड प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। तो मैंने कैसे किया है, आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट एक रखा है, देन मैंने रिजिड पेमेंट रखा है, देन मैंने कन्वर्ट रखा है। तो जैसे जैसे मेरा WBS है उसके हिसाब से मैंने कॉस्ट को मेरा डिवाइड करके रखा है, ठीक है। अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ फिल्टर बाय ऑल एक्टिव रिसोर्सेज, तो मैं हर प्रोजेक्ट के रिसोर्स अलग बनाता हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं कि कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। तो इफ ये मेरे PMS, ये मेरा सैंपल प्रोजेक्ट, ओके, इट इज माय सैंपल प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट वेटेजेस है। तो मेरे प्रोजेक्ट वेटेज में जनरल आ गया, तो जनरल के देखिए ये सारे जनरल के अमाउंट है। तो मैंने जनरल का एक नहीं बनाया, जितने मेरे सब हेड्स थे उतना मैंने रिसोर्सेज बनाए हैं। तो आई कैन मेज द कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दैट। फिर मेरा वाइडक्ट है, तो वाइडक्ट में मेरा फाउंडेशन अलग है, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, हैंड ओवर। तो इसके बेसिस पे आप कॉस्ट को असाइन कर सकते हैं, इसके बेसिस पे आप क्वांटिटी कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे मटेरियल क्वांटिटी जाएंगे, तो मटेरियल मैंने एक नहीं रखा, इसके अंदर भी मेरा डिजाइन अलग है, वाइडक्ट रिसोर्सेज अलग है। तो वाइडक्ट रिसोर्सेज में मेरा क्या गया, केबल ट्रप, बेरिंग फिक्सिंग, फिर आपका पैरापेट कास्टिंग, इरेक्शन, तो ये सारी चीजें आ गई। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं आपको वो सारी चीजें डालने पड़ेंगे, आप क्रिएट करने पड़ेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रैंडमली कहीं पे भी डाल दिया, सारी चीजें आई मैं बहुत कम ही एक्सेस, मंडे टू फ्राइडे हो गया, वीकेंड होगी। सी क्लास का जो मेरा डिस्कशन हुआ है वो अभी है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, अभी जितना मेरे को पता है। ओके, will course include the report preparation in Primavera? See, a report preparation, आपको क्या क्या रिपोर्ट चाहिए? सी यू हैव अ KPI, ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस। तो वो चीज जब आप रिसोर्स कर रहे हैं तो आपको उसी बेसिस पे की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस मिल जाते हैं। इफ आई विल शो यू एनी प्रोजेक्ट जिसमें मैंने ऐसा किया, परसेंटेज,
ओके तो दिस इज लाइक योर वेटेज रहता है पूरा प्रोजेक्ट का. इफ आई शो, इट इज अ फिजिकल एस कर्व जो हमने सैंपल क्लास में लिया था. इट इज अ प्रोजेक्ट एस कर्व पूरे प्रोजेक्ट का. इट इज अ कॉस्ट. और जो आपका क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है मंथली, ये सारी चीजें आ गई आपका मंथली डिस्ट्रीब्यूशन. ओके नाउ अब आपकी प्राइमवेरा में अलग अलग रिपोर्ट्स होती है. इट्स अप टू यू आपको कौन सी रिपोर्ट रन करनी है. सी वी हैव अ लेग रिपोर्ट. ये अभी फॉर्मेट में नहीं है. एस जब मैं HTML में खोलूंगा तो उस हिसाब से दिखेगा. ये मेरा दूसरे फॉर्मेट में है, अभी दिख नहीं रहा. तो सी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है. आपको क्या क्या रिपोर्ट करनी है, देर इज एन नंबर्स ऑफ रिसोर्स. आप एस कर्व के भी मतलब क्वांटिटी कर सकते हो. आप CSV फाइल में आपकी रिपोर्ट जनरेट होती है. तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए. सी मेनली यू सबमिट अ कॉस्ट. आप फिजिकल परसेंटेज करते हो तो बेस ऑन रिसोर्सेस आई विल गेट इट. सर कोर्स करने के बाद किसी प्रोफाइल में जॉब मिलती है क्या. सी अ जॉब मिलना ना मिलना, इट्स ऑल अबाउट अ रिक्वायरमेंट. किसी नई कंपनी, कोई भी नया कॉन्ट्रैक्टर आया जिसको प्राइमवेरा प्रोग्राम बनाना है, तो दे विल हायर अ पर्सन हु नो द प्राइमवेरा. उसको सीक्वेंस बताएंगे एंड दे विल गेट द जॉब. ठीक है. हर चीज क्या होती है ना, यू हैव टू शो केस. आपको अलग अलग टेंटेटिव टाइमिंग ऑफ द लेक्चर आई थिंक फ्रॉम 8:30. आई हैव सेड आफ्टर 8:30, 8:30 बजे के बाद 2 घंटा जो भी रहेगा, क्योंकि उससे पहले मेरा ऑफिस रहता है. तो इट्स आफ्टर 8:30. नाम और प्रोफाइल क्या होगा सर जॉब का. सी नाम इज अ प्लानिंग इंजीनियर. if you want to see a growth, so you can visit my LinkedIn profile. You will see my growth in 6 years. I've been working as a lead scheduler for a 237-kilometer project where I'm directly dealing with NHRCL for program approval and all. From 6 years, I am doing the Primavera. Can we generate daily, weekly, monthly requirement, inventory requirement? See, daily, weekly, monthly, you can get a budgeted. Okay. If you go to resource assignment, 1 minute. Okay, if you go to resource assignment, you click here. Okay, customize. Oh, not customize. Time scale. Currently, I am using a quarter month. If you want a month week, you can get a month week. तो यहाँ पे आपको distribution जो रहेगा, okay, you will get a week wise कि आपका week wise क्या quantity आ रहा है. Okay, तो आपको कुछ नहीं करना है. You go टाइमलाइन पे आपको वर्क वीक चाहिए, देन यू गेट वीक डे, तो यू विल गेट अ डे वाइज. बट आपको वो चीज असाइन करनी पड़ेगी. बिना असाइन किए आप कुछ नहीं कर सकते हो. नाउ इफ यू आर गेटिंग अ इन्वेंट्री, तो can I get a link P6 file with Revit? How can see you can link it, but it is not a part of Primavera class. It is a BIM or BIM classes, or they will teach you because वो उसके अंदर में आता है. तो इट्स यू कैन डू इट. आप रेविट से कनेक्ट कर सकते हो, आप ऑटोकेड से कर सकते हो. इट इज कम एज अ पार्ट ऑफ बिम. ओके, इट इज नॉट अ प्राइमवेरा पार्ट. इट इज अ 4D. इफ यू वांट सिंक प्रो, बेंटले का सिंक प्रो है, वो होता है. तो दिस आर द थिंग. इट इज अ अपगोइंग वर्जन. ऐसा नहीं है. आपका बेक्सेल करके एक सॉफ्टवेयर है जो एक्सेल फॉर्मेट देके आपको ड्राइंग क्लीन करवाता है. दे विल गिव द प्रोग्रेस. तो ये सारी चीजें. फॉर इन्वेंट्री आपने कंक्रीट डाला है, अगर आप डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हो तो यू विल गेट कि आपको कितना और कंक्रीट है. मतलब आपने सीमेंट डाल के रखा है, आपका सीमेंट कितना यूज हो रहा है. यू लेकिन आपको फिर उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी. अगर आप डेली किसी चीज का आउटपुट चाहिए तो डेली आपको क्वांटिटी एडजस्ट भी करनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि
आपने रैंडमली डाल दिया, देन आपको सी दिस अ सॉफ्टवेयर जिसके लिए डाटा इनपुट आपको ही करना है। आप क्या करोगे, अगर 100 एम क्यूब डाल दिया ना, तो अगर 2 महीने की एक्टिविटी है तो 50-50 डिवाइड कर देगा। तो आपके ऊपर है कि आपको डिवाइड कैसे करना है। ओके, एनी क्वेश्चन? एनीवन? Can we get all report in IPC or MB form? Can we show the infrastructure project in P6? It is already there. If I show it is all there. You want to see? No. All are the infrastructure project. This is my current project, which I cannot open it. But can we get all reports in IPC or MB format? Sir, you can get all the reports when you are updating. Actuals आपको मिल जाएंगे, बट आपको बजटेड यूनिट आपको क्या करना पड़ता है, प्राइमवेरा से बजटेड यूनिट फर्स्ट टाइम में ही आपकी सेव होती है, क्योंकि जब आप उसको चेंज करते जाओगे तो बजटेड यूनिट चेंज होगी। तो एक्चुअल आपको परसेंटेज मिल जाएंगे, यू कैन यूज इन एस्कर। अगर मैं आपको यहाँ शो करूंगा तो हियर मेरी जो भी फिजिकल एस्कर रहेगा, आई विल गेट दिस वन फ्रॉम बजटेड यूनिट, और जिस महीने में अपडेट करूंगा तो आई विल गेट अ एक्चुअल यूनिट्स कि मेरा कितना होना था। सी 1.72 था और 0.78 हुआ, तो दिस एक्चुअल आई विल गेट फ्रॉम द प्राइमवेरा, और मैं इस एक्सेल में डालते जाऊंगा। तो दिस एवरी मंथ आई कैन सबमिट इट। मेरा कितना, मतलब इफ यू वांट कि अगर आप सही से अपडेट कर रहे हैं तो आपका हर WBS मतलब बिलिंग बाइफरकेशन का यहीं के बेसिस पे आपका आ जाएगा कि हाँ मेरे को कितना करना था और कितना मैंने अचीव कर दिया। Can you please share more project of highway? Are you going to use Excel to import activity WBS resource cost? See, I'm not going to use Excel to import anything. I will use Excel to make a graph. Everything I'm going to do on Primavera, resource creation, resource assignment, even distribution भी हम यहीं से लेंगे। I'm not going from import export वाले उस पर मैं नहीं जाता। I will do everything on Primavera. Can you please share more project for highway? Hello, sir. Yes. Yes. In course, can I learn how to calculate S curve and cost benefit ratio in any project? See, S curve, can we replace DPR with this? See, DPR you can replace it, but उसके लिए बहुत सारे coding लगते हैं। That for that we have a unifier जो Oracle का है। They are linking it, तो आपको daily update करना पड़ेगा। Now you are going to take those pen to update daily, तो वो रिपोर्ट फॉर्मेट में जाएगा, जो इसका डैशबोर्ड रहता है उसके चीज पर रहता है। इन दिस कोर्स कैन आई लर्न हाउ टू सी एस्कर, आई विल टेल हाउ टू टेक एस्कर। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज आई डोंट हैव एनी कॉस्ट फॉर एनीथिंग। तो जब आपको कॉस्ट ही नहीं पता तो आप देखो, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉस्ट नहीं देता, कॉस्टिंग टीम अलग बैठती है, शेड्यूलिंग टीम अलग बैठती है। तो नॉर्मली वी आपका जो भी क्लाइंट को प्रोग्राम सबमिट होता है वो इनवॉइस पार्ट पे होता है, जो आपको क्लाइंट से लेना है। Okay, so as curve for financial and physical, we will do it. Can you teach this all in course? See, DPR I cannot because उसके लिए कोडिंग लगती है। इंडिविजुअल पर्सन कैन नॉट डू इट, उसके लिए बहुत सारी चीजें लगती है। इट्स नॉट सिंपल। मेरे पास उसका डैशबोर्ड है। फॉर रनिंग दैट पर्टिकुलर डैशबोर्ड हमको 6 से 7 महीना एक कंपनी के साथ लगा जिसको 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो इट इज नॉट अ इजी टास्क कि आप हर चीज लिंक कर लो। इट्स सेल्फ अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब उसको, क्योंकि उसमें कोडिंग्स होती है, वो नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि आपको बैकअप डाटा, आपको CVC फाइल को सेव करना, फिर आपको वो रन करना,
तो ये सारी चीजें रहती है, आपको उसके लिए कोडिंग उतनी सारी करनी पड़ती है। ओके, तो दिस कोर्स वी विल कवर अ प्रोग्राम एंड वी विल डिस्कस अबाउट हाईवे प्लानिंग क्या क्या होता है, देन वी विल सी द manually inserting hundred of activity in Primavera P6 is time consuming. I will tell you, you not to type, you only need to copy paste. When every activity is a group based activity, if you are doing a piling activity, we hardly take 15 minutes to create linkages with time duration for 30 pile group. You need हेलो to do सर। yes. सर मैं जैसे बीटेक सिविल की मैं 2021 में है ना, तो सर आपके कोर्स करने के बाद कितने टाइम में कोई रफ आइडिया जॉब मिल सकती है? जॉब का मैं बोल रहा हूँ ना, देर इज अ, आपको फ्रेशर्स के लिए भी जॉब आती है, इसमें ऐसा नहीं है। आपको वो कंपनी पिक आउट करनी पड़ेगी कि आर यू टीचिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आई एम टीचिंग फ्रॉम जीरो लेवल, फ्रॉम वेयर वी डिस्कस द एक्टिविटी टाइम साइकिल, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, प्लानिंग क्या क्या चीजें कंसिडर करते हैं, वहां से हम चालू करेंगे। एक्टिविटी के टाइप्स क्या होते हैं, एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होते हैं, WBS कैसे बनाना है, कैलेंडर का क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कैलेंडर लगा के बताएंगे कि डिफरेंट कैलेंडर यूज करने से डेट में क्या इम्पेक्ट आता है। ओके, नाउ सी, गेटिंग अ जॉब इज समथिंग, इट्स हाउ यू अप्रोच द पीपल। ठीक है, इफ आई से मेरा जो जॉब लगा था ना, इट इज अ अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, उनको प्राइमेरा का चाहिए था, जिसको प्राइमेरा अच्छे से आता हो, चलाते आता हो। तो आई गेट माई जॉब विदाउट इंटरव्यू, माई फर्स्ट जॉब, without any interview I get my first job. Yeah, see, passing से कुछ नहीं होता। सी, आपको क्या करना है ना, लिंक्डइन दिया है ना, यू डन योर वर्क, आप उस चीजों को प्रोजेक्ट करो कि मैंने ये किया है, मैंने ऐसे किया है, somebody will attract it। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स किया नेक्स्ट डे आपके पास जॉब आ जाएगी। आपको अपने आप को ना सामने वाले को दिखाना पड़ेगा, मेरे को ये सारी चीजें आती हैं। आपने अगर पावर BI सीखा है तो आपको आपका प्रोजेक्ट का डाटा मत लो, आप दूसरे प्रोजेक्ट का डाटा लेके आप कुछ भी रैंडम डाटा लो, गूगल से उठाओ, आप उसको दिखाओगे कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, किसी ना किसी को जरूरत होगी तो दे विल हायर यू और कॉल यू। अब ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ CV भेज रहे हो, आप अपनी प्रोफाइल को उस वे में नरिश करिए कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। लाइक कोई आर्किटेक्ट है तो आर्किटेक्ट अपने जो भी इंटीरियर और जो भी वर्क रहते हैं उसको शोकेस करता है, तो उसके चक्कर में जॉब मिलती है। वी गेट माई जॉब बिकॉज एनी क्वांटिटी सर्वे कोर्स मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इफ दे हैव एनी। Please share the list of projects you are going to discuss upcoming paid lecture. See, we will discuss a whole 1 kilometer of metro stretch completely. Then we will discuss a highway का, वडोदरा एक्सप्रेस वे का मेरे पास स्टैंडर्ड ड्राइंग पड़ा हुआ है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि उसमें क्या क्या टिपिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसके WBS मैंने क्रिएट किया, तो वो चीज। देन आई हैव अ अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट, तो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट में डी वॉल, लॉन्चिंग सीक्वेंस, कि मैं अगर टॉप डाउन मेथोलॉजी कर रहा हूँ तो मैंने किस ओपनिंग से क्या कंसिडरेशन करके पकड़ा था, क्या सीक्वेंसिंग पकड़ी थी। तो सीक्वेंसिंग पार्ट हम उधर डिस्कस करेंगे, नॉट इन प्राइमेरा बट एज अ पार्ट ऑफ PPT, इट्स कम एज अ डिस्कशन, बिकॉज अगर मैं 3 प्रोजेक्ट क्रिएट करने जाऊंगा इट विल टेक अ मोर टाइम। ओके, तो कोर्स डिटेल इज ऑलरेडी with team, they will share with you कि क्या क्या कोर्स है। तो one project we will take whole, all activity linkages, एंड रिमेनिंग 2 प्रोजेक्ट वी विल डिस्कस कि हाँ हमने क्या क्या चीजें कंसिडर करी, क्या क्या सीक्वेंसिंग रहती है, मैंने उसको क्यों ऐसा ब्रेकअप किया है, टनल है, मैंने क्या क्या चीजें ली है, मतलब इफ आई शो कि मैंने कैसे काम किया है, अगर हाईवे प्रोजेक्ट का वो होगा मेरे पास।
हाईवे कोटा. just showing कि क्या है. ये है टनल. हेलो सर. यस. हेलो हाँ बोलिए बोलिए. सर, बोल रहा था आपका जो कोर्स जो है ना उसमें क्या क्या है थोड़ा देखना था. कोर्स में if you go the first 2 slide, first 3 slide ना, and this is the course content from here. Okay, this one I will means it is with team, they will share with you कि क्या क्या चीजें हैं. प्लीज शेयर इट. I'm also working. सर यू See, नो ऑर्बिट टेक्नोलॉजी. क्या? See, this is पता है the सर way. ऑर्बिट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. No, I know, but कभी काम नहीं किया. See, this is how I calculated for a highway project. तो इससे मेरे number of layers पता चलते, तो I can predict the time period. Okay, तो ये सारी चीजें टेंडर ड्राइंग्स और ये सारी चीजें पढ़ने से पता चलती है. ऐसा नहीं है कि आई हैवंट वर्क इन कि मेरे को नई एक्सपीरियंस है. तो दिस इज द थिंग कि क्या डिजाइन लेवल है, क्या ग्राउंड लेवल है. तो कटिंग फीलिंग देन ओनली यू कैन गेट, हाँ, कि आप किस लेवल तक पहुंच पाएंगे, कितने नंबर्स ऑफ लेयर्स चाहिए. तो ये वडोदरा एक्सप्रेसवे का है. दिस इज द WBS ऑफ वडोदरा एक्सप्रेसवे पैकेज 15. और आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी डमी एक्ट, मतलब प्रोजेक्ट जो भी मेरे प्रोग्राम मैंने सबमिट किए हैं, आई विल यूजिंग अ दोज WBS ओनली. तो ये वो WBS है. तो ये सब चीजें will you touch base on the day to day baseline scheduling, rescheduling daily of project planning. This will you touch base on daily baseline scheduling. See, we will do a baseline once. A rebaseline आपका क्या होता है कि for that आपको वही चीज वापस से वर्कआउट करनी पड़ेगी उस फ्रेम में. तो इट इज अ रिपीटेटिव वर्क. मतलब अगर मैं डिस्कस भी कर रहा हूँ, इफ यू आर बिहाइंड बाय दिस नंबर, तो आपकी सिक्वेंसिंग एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दोस थिंग. आपके मंथली प्रोग्राम, वीकली प्रोग्राम इज समथिंग, सीक्वेंस वही रहेगा. अगेन इट्स कम टू योर रिसोर्स नंबर. अगर आपको पता चल गया, सी आपको क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट करते हो, आपने पहले दिन एक की प्रोडक्टिविटी ली, बट after some time you get to know your productivity is getting 1.5 times. होता है, ऐसा नहीं है कि आपने जितना लिया वही अचीव कर रहा है. सम टाइम आपको नहीं पता था कि वहां मानसून आ जाएगा, तो यू हैव बीन फार बिहाइंड ऑफ योर प्लान, तो आप उसको कवर करते हैं. तो आपका जब प्रोग्राम रहता है, तो हाउ यू स्टार्ट योर प्रोग्रामिंग, इनिशियली आप कम लेते हैं, फिर आप उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं. तो वो सारी चीजें देखो, रीसेक्वेंसिंग, ये सारी चीजें क्या होगी कि जब आपने प्रोग्राम अपडेट कर दिया एक सर्टेन, ऐसा नहीं कि आप 1 महीने के बाद ही करेंगे रीशेड्यूलिंग. 1 महीने तो नॉर्मली आगे पीछे हो जाता है. तो ये सारी चीजें आपकी मंथली पे जब आएगी, क्योंकि रिपीटेटिव एक्टिविटी है, हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम प्राइमेरा में वो चीज शो नहीं कर सकता, क्योंकि वो वापस से रिपीटेटिव प्रोसेस वो हो जाएगी. वहां पे आपको क्वांटिटी जाके एडजस्ट करनी पड़ेगी. वहां पे आपको रिसोर्स असाइनमेंट में खेलना पड़ेगा, कि आपको रिसोर्स चेंज करने पड़ेंगे, आपको लिंकेजेस चेंज करने पड़ेंगे.
ठीक है, तो बेस लाइन आप कब करते हो? जब आपका एक्सटेंशन ऑफ टाइम अप्रूव हो जाता है, उसके पहले आप बेस रीबेस लाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव परमिशन टू चेंज द लिंकेजेस एज पर योर अप्रूव बेस लाइन। तो हम बेस लाइन करेंगे, कैसे उसको अपडेट करते हैं, व्हेन वी आर अपडेटिंग तो कुछ चीजें बिहाइंड रहती है, तो वो सारी चीजें रहती है। उसको रीशेड्यूलिंग करते, मतलब मैं रीशेड्यूल करूंगा तो फिर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देर इज सम टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, उसको रिलेशनशिप हटाने में ही 2 से 3 दिन लग जाएगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि लाइव प्रोजेक्ट में इफ व्हाई शुड अ बीटेक सिविल स्टूडेंट डू दिस कोर्स, गो एंड check on Google कि there is so many vacancy from BTech person with the primary knowledge are hired। ऐसा नहीं है कि MTech वाले ही हो रहे हैं। It is not कि see a software you can go to a planning field। Sir, MSP or primary, see I am saying there is no different, it is only a employer requirement। but अगर प्राइमवेरा रिक्वायरमेंट है तो आपको प्राइमवेरा में प्रोग्राम देना, इट विल नॉट टेक इन MSP। आप सेम चीज एक्सेल में भी अच्छे से बना के दे सकते हो कि ये डेट से मैं स्टार्ट करूंगा, बट अ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज देयर। अब आप ड्राइंग ऑटोकेड में भी बना सकते हो, आप ड्राइंग हाथ से भी बना सकते हो, तो व्हाई दे आर टेकिंग ऑटोकेड ड्राइंग? तो वो एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। वैसे ही प्राइमवेरा भी एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है। कुछ दिन के बाद प्राइमवेरा नहीं दूसरा सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यूके में दूसरा सॉफ्टवेयर चल रहा है, हर जगह का सॉफ्टवेयर अलग है। कहीं कहीं हाईवे के लिए प्राइमवेरा यूज नहीं हो रहा है। इफ यू गो टू अफ्रीका दे आर यूजिंग अ टाइलोस फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस। तो सब जगह का अलग अलग है, तो इट इज अ नीड ऑफ द एजेंसी। अगर आज कल सारी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी मिलके बोले नहीं हमको प्राइमवेरा पे प्रोग्राम नहीं चाहिए, तो हम लोगों के पास कुछ काम नहीं है। तो सिंपल थिंग, इट इज अ रिक्वायरमेंट क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इसलिए उसकी डिमांड है, इसलिए उसकी वैल्यू है, और कुछ नहीं है। अ डे दे डम दैट सॉफ्टवेयर की प्राइमवेरा पे प्रोग्राम नहीं चाहिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू विल बी ऑन साइड लाइन। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सी अब मुझे मुझे वही बोल रहा हूँ कि ड्यूरेशन कैलकुलेशन, सी ड्यूरेशन कैलकुलेशन वी विल डिस्कस अ टाइमलाइन। जो भी चीज रहेगा हम टाइमलाइन कैलकुलेट करेंगे। वाइल जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैं करंट प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ, तो यू गेट अ एवरेज टाइम साइकिल, तो उसके बेसिस पे होता है। मैं वही बोल रहा हूँ, कोर्स इज समथिंग, इट इज गेट अ अपर एज। आपकी क्लास में अगर 50 लोग हैं, उसमें से 2 को प्राइमवेरा आता है, तो दे विल गेट द प्रेफरेंस, और कुछ नहीं है। इट्स ओनली अ मैटर कि आपको सॉफ्टवेयर आता है, हाउ गुड। क्योंकि आजकल इंसान कोई कंपनी में जाने के बाद सिखाना नहीं चाहता। अगर आपको सॉफ्टवेयर पता है तो सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा, और कुछ नहीं। सी आपको MSP आता है तो इट्स नॉट टफ फॉर यू फॉर प्राइमवेरा, बट उसमें रिसोर्स असाइनमेंट और ये सब चीजें डिफरेंट है। मैं MSP मेरे को भी आता, मैंने कभी यूज ही नहीं किया क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। बट आपको देखो, दोनों का इंटरफेस अलग अलग है। मेरे को प्राइमवेरा का इंटरफेस ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू MSP, तो आई विल चूज प्राइमवेरा। एनी मोर क्वेश्चन किसी को? यार मैं वही बोल रहा हूँ कि व्हेन मैंने स्टार्ट किया था, मैं कॉलेज से डायरेक्ट, मतलब मेरा तो कॉलेज खत्म नहीं हुआ था, देन आई गेट दी अपॉर्चुनिटी। मेरे को सी, आई नो प्राइमवेरा, आई नो MSP, आई नो टाइलोस विच इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। वो प्रोजेक्ट, उस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट अपने आप में इतना ह्यूज है, यू कैन नॉट डू अ पायरेट फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इट इज अ नीड। अगर कहीं पे 4D सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा फॉर जॉब, आई विल गो एंड लर्न इट, सिंपल। पर
ये कैसे पता चले कि हाँ कि हमें मतलब कौन कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए, ये चीज़ कैसे पता चलिए हमें? लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 21 का चल रहा है। लेटेस्ट वर्जन 20.12 मेरे पास है, 21.12 आ चुका है। सी सॉफ्टवेयर ये है कि आपको इंटरेस्ट किस में। इफ यू सी अ डिजाइन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आपको डिजाइन के सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, ऑटोकेड के साथ आपका बीम आ गया है। फिर आजकल 3D, तो डिपेंड करता है आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है। मुझे मैंने मैंने कोर्स ही, मेरा मास्टर्स ही कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में था। मींस पी सिक्स ही चल रहा है, P7 नहीं आया, P6 ही है। P6 का वर्जन 21 पॉइंट समथिंग चल रहा है अभी। अच्छा। हम्म। तो आपको किस फील्ड में जाना है उस पर डिपेंड करता है। प्राइमरी सिलेबस आई ऑलरेडी डिस्कस कि आप ये सारी चीजें कवर करेंगे, फ्रॉम स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट, आपका टाइम साइकिल, प्रोजेक्ट क्रिएट करना, फ्रॉम WBS दैट क्रिएट योर टाइप ऑफ एक्टिविटी रिलेशन कैलेंडर, अ होल 1 किलोमीटर स्ट्रेच, एक्टिविटी कोड, रिसोर्स क्रिएशन, असाइनमेंट, फिजिकल परसेंटेज, फाइनेंशियल, दोनों के एज पर, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, बेस लाइन, प्रोग्रेस अपडेट एंड रिपोर्ट। सर जैसे किसी बंदे ने अगर एमटेक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में की है तो उसके लिए तो थोड़ा ये सॉफ्टवेयर सीखना आसान होगा। अब जो बंदा बीटेक सिविल की है उसने उसके लिए थोड़ा टफ नहीं होगा ये सीखना? नहीं देखो, सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं है कि बीटेक और आपने एमटेक किया है। इन दी एंड सॉफ्टवेयर में आपका वो नॉलेज टेस्ट ही नहीं हो रहा ना। इट इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। आपको माउस चलाते आना, आपको एक्टिविटी ऐड करना, आपको लिंक करता आना, आपको रिलेशनशिप समझना है। ठीक है, रिलेशनशिप इट्स वेरी इजी, फिनिश टू स्टार्ट, मतलब एक एक्टिविटी फिनिश हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, स्टार्ट टू स्टार्ट, तो ये सारी चीजें समझनी है। एक्टिविटी के स्टेट प्रो है आप नहीं, मैं ऐसी डिजाइन विजाइन में छूटता ही नहीं। आई एम वेरी, तो ये सारी चीजें उसके बेसिस पे चलती है। फिर सर एक बंदे ने अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और हम तो बीटेक वाले हैं तो सर थोड़ा डिफरेंस नहीं आएगा? मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मेरे साथ बीटेक वाले भी काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले भी काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला उतना समझदार हो और बीटेक वाला ना हो। इन दी एंड आप अपने आप को कैसे शोकेस करते हो उस पर डिपेंड करता है कि हाउ यू प्रूव योर वर्थ। अगर आप मार्केट में कुछ काम कर रहे हो तो आप बता रहे हो ना कि मेरे को ये आता है, इसमें बी और एमटेक का कुछ वैल्यू नहीं है। आप उस सॉफ्टवेयर पे कैसे काम कर रहे हो, मैटर वो करता है। आपका उस पे कितना अच्छा कमांड है, आप कितना तेज काम कर सकते हो। ठीक है, मेरे हाँ। अंडर में एक बीटेक वाला भी है और एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला भी है। इवन मेरे पास तो मैकेनिकल का एक बंदा था जो सिविल की प्लानिंग करता था। ओके, तो इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे गाइड कर रहे हो, वो कैसे लिंकेजेस कर रहा है। दिस सॉफ्टवेयर इज प्योरली बेस्ड ऑन योर इमेजिनेशन एंड लिंकेजेस। आप कैसे लिंक कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि पीपल से एग्जीक्यूशन का नॉलेज, लेकिन उसको ये नहीं पता कि फाइल चालू करने से पहले टेस्ट फाइल होना जरूरी है, टेस्ट फाइल से पहले जीटीआई जरूरी है, जीटीआई से पहले लैंड जरूरी है। आपने लैंड की एक्टिविटी तो डाल दी लेकिन लैंड को लिंक नहीं किया, तो वो लैंड आपका कभी काम ही नहीं आएगा ना। लिंकेजेस वहां से ड्राइव होती है। आपको ये पता चलना चाहिए उस चीज का स्टार्ट पॉइंट क्या है। अगर आपकी जमीन लेट हुई तो सारी चीज लेट होगी ना। अगर आपने उसको लिंक ही नहीं किया है तो आप उसकी डिले से उसका डिले नहीं बता पाओगे ना। आप कनेक्टिंग ट्रेन करते हैं तो कनेक्टिंग ट्रेन वही देख के करते हैं ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम्पल वही है, लाइव एग्जाम्पल है कि आपको किसके बाद क्या चीज करनी है और क्या चीज छोड़नी है। आप किससे क्या लिंक करेंगे। अगर आपको पता है आज के दिन में आपको फाइलिंग करनी, तो आपको एक महीने पहले आपको डिजाइन सबमिट करनी पड़ेगी क्योंकि उसका अप्रूवल टाइम 21 डेज है। आपने यही नहीं पढ़ा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितने दिन का अप्रूवल है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो वो है। हाँ हाँ तो सिंपल कॉन्सेप्ट हाँ। ये और है बाकी कि सर हाँ, हाँ हाँ और बाकी सर ये कोर्स करने से पहले क्या प्री रिक्विजिट होने चाहिए एक स्टूडेंट के लिए?
सी प्री रिक्विजिट ऐसा कुछ नहीं है. A prerequisite is you attend all the class, you will get the knowledge. हम ऐसा कुछ भी नई चीज नहीं चालू करेंगे. जो भी रहेगा, if I am going to मैं पाइलिंग लूंगा तो पाइलिंग के पहले कितनी एक्टिविटी रहती है वो सारी डिस्कस करेंगे. वो एक दिन का क्यों ले रहे हैं वो भी टाइम फ्रेम है. तो आपको क्या क्या चीजें हैं कि हमने अगर जीटीआई ले रहे हैं तो हम क्यों जीटीआई अलग अलग सेक्शन में लेते हैं, क्यों लैंड हैंडओवर में क्यों अलग लिया, तो ये सारी चीजें वहां से लेंगे. और जो जो कॉन्ट्रैक्ट में सबमिशन दिए हुए हैं, जो भी मेरे बीओक्यू में सबमिशन दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे ही वो सारी चीजें आगे मूव करेगी. अच्छा. हम्म. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में आपका दिया हुआ रहता है. कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में आपका दिया हुआ रहता है कि आपको क्या चीज सबमिट करनी है, क्या चीज नहीं सबमिट, मतलब कितने दिन में करनी है. तो वो सारी चीजें रहती हैं. हाँ हाँ. एनी डाउट कि क्लास क्लोज करें? In this project we will conduct a project in every. सी प्रोजेक्ट मेन हमारा जो भी रहेगा वो प्राइम मेट्रो का रहेगा. बिकॉज तीनों प्रोजेक्ट कंसिडर करने इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग जॉब. ठीक है. फॉर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक वन. फॉर डब्ल्यू बी एस मेरे पास रेडी है. वी विल डिस्कस दी डब्ल्यू की कैसे डब्ल्यू करते हैं, क्योंकि बेसिकली एक्टिविटी सेम रहेगी. ठीक है, कि किसके बाद क्या लेना है, कि क्या क्या एक्टिविटी रहती है. ओके. आई विल शो यू. हेलो. स्टॉप शेयरिंग. See, this is how we are going to proceed. मतलब यहाँ से it is a construction sequence कि स्कोप, प्रोजेक्ट डिटेल, क्या सीक्वेंसिंग रहती है. दिस इज अ पाइल, मतलब जो मैंने कंसीडर किया है अ कंस्ट्रक्शन मेथोलॉजी, कास्टिंग यार्ड, देन योर इरेक्शन. तो इट इज योर फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. फिर देन यू हैव अ एक्टिविटी रिलेशन. कौन सी फाइल की टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो भी रहता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्टिविटी रिलेशनशिप. कहाँ पे क्या रिलेशनशिप यूज करते हैं, क्या उसके पीछे रीजन रहेगा. तो ये चीज है. तो दिस इज लाइक दैट. हम कैलेंडर डब्ल्यूबीएस ये सब चीजें जाके करेंगे. देन इफ आई शो यू इन फाइल डॉक्यूमेंट, दिस इज स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट. दिस इज द अलाइनमेंट ड्राइंग की हम कैसे पीयर नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, कि ये सारी चीजें क्यों देखना जरूरी है, कब स्पान कहाँ पे आ रहे हैं. कि सी, क्योंकि जब मैं कोई प्रोग्रेस लेना चाहता हूँ तो मैं पहला स्ट्रेच कौन सा नहीं लूंगा. तो ये सारी चीजें मैं ड्राइंग्स देख के, क्योंकि कर्व स्पान क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में कर्व स्पान से काम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि कर्व 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 की ड्राइंग आने में डिले होता है, बहुत सारी चीजें रहती. तो वो सारी चीजें कंसिडर करना, कर्व स्पान आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें हम देखेंगे. ओके. ओके.
बाकी सर आपके अकॉर्डिंग सर जैसे बीटेक सिविल करने के बाद गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर सॉफ्टवेयर की स्किल को डेवलप करना चाहिए, इन दोनों में से क्या करना चाहिए? सी मैं सिंपल सा एक चीज बोलता हूँ कि at least tell me which project. See, we will take metro project. I already tell now. Elevated metro we will take for 1 kilometer. देखो गेट की प्रिपरेशन और लर्निंग और सॉफ्टवेयर दोनों अलग है. आप 1 घंटा डेली भी देंगे तो गेट साल में एक बार होगी. यू कैन लर्न दी सॉफ्टवेयर. ठीक है. 4 से 5 6 घंटे का मतलब सिटिंग मैक्सिमम सिटिंग आपका 8 घंटे 9 घंटे. यू कैन लर्न दी कोर्स और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट. तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको कर सकते हो. गेट आपको करनी, यू कैन गो फॉर गेट आल्सो. तो उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है. अगर आपको एमटेक करना है तो वो आपके लिए अच्छा है, उसमें आपको आगे फायदा मिलेगा. आपको इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, तो उसमें आपको इंटरव्यू तो इन सब चीजों में फायदा हो सकता है इन फ्यू. तो वो उसके साथ डेवलप होता है. तो इतना कुछ ये नहीं है कि आपको दिन भर बैठे ही रहना है. यू हार्डली गिव 1 or 2 आवर तो उस पे हो सकता है. तो वो सारी चीजें रहती हैं. Now we will take a highway project. If you want, I will share the highway project with you. और मेट्रो का प्रोजेक्ट आई विल. मेट्रो का तो मैं शेयर ही ऐसे करते ही हूँ. हाईवे का जो मैंने बनाया वो आई विल शेयर. मेरे पास एमएसपी में भी हाईवे के प्रोजेक्ट है. आई हैव डब्ल्यूबीएस. आई विल शेयर ऑन इनिशियल डे. यू कैन आस्क मी अ डाउट, वी विल क्लियर इट बिकॉज सीक्वेंस इज सेम. वंस यू क्रिएट दिस पर्टिकुलर डब्ल्यूबीएस ना, उसके बाद सिर्फ आपको एक्टिविटी ऐड करनी है. सी, I have created the WBS. ये उसकी एक्टिविटी है. नाउ यू हैव टू पुट द ड्यूरेशन. ठीक है. आपको लिंक करना है. नाउ यू बेस्ड ऑन योर प्रोडक्टिविटी यू विल लिंक. यहाँ क्लीनिंग ग्रबिंग होगी तो अर्थ कितना टाइम लगेगा. मेन चीज ये क्रिएट करना है. जिसने ये क्रिएट कर लिया ना, स्कोप डिफाइन कर दिया. क्योंकि आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, मैं कितने फ्रंट में काम कर रहा हूँ. तो ये सारी चीजें आपकी हो गई है. अब आपको पता है जीएसबी है. जीएसबी इज अ एक्टिविटी. नाउ इट्स अप टू यू कि इन हाउ मेनी वे यू वांट टू ब्रेक अप. One last, up to which level you are preparing schedule for submission? I will prepare a schedule. Last level means मैंने जो प्रोग्राम बनाए हैं आई हैव प्रिपेयर्ड टिल ग्रुप वाइज लाइक पाइल कैप पियर जो मैं आपको शो किया था. बिकॉज उसके नीचे जाना इज वेरी डिफिकल्ट. लाइक केबल ट्रफ पैरापेट जो मेजर आइटम आपको दिख जाते हैं आई विल टेक दोस थिंग. क्योंकि आपको क्या करना है ना, प्राइमरी में कंस्ट्रेंट है वेटेज के भी. तो आपको एक डेसिमल डिजिट के बाद आप नहीं जा सकते. यू कैन नॉट गो मोर फर्दर कि हाँ मैं इससे वो डिवाइड कर दूं, उसके नीचे चले जाऊं. देखो आपको प्रोग्राम बना रहे हो सामने, आपको सामने वाले का भी ध्यान रखना है कि आपको अपडेट भी करना है. प्रिपेयरिंग प्रोग्राम इज इजी, अपडेटिंग अ प्रोग्राम इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. आपने प्रोग्राम बना दिया, उसको अपडेट ही नहीं कर पाओगे तो इट्स विल नॉट वर्कआउट कि हाँ. क्योंकि आपको मतलब आप जब ईओटी बनाओगे या आप रिमेनिंग ड्यूरेशन डालोगे तो वो सारी चीजों पे हैम्पर करेगा. करेंटली आई एम हैंडलिंग 46,000 एक्टिविटी. तो मैं 46,000 एक्टिविटी में और डिटेल में जाऊंगा तो आप समझ सकते हो कितना मल्टीपल्स बढ़ेगा. बाकी सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम जॉब के L4 लिए L5 is sufficient for अप्लाई submission. See, first you कह रहा हूँ get. कि हाँ. See, if any job for fresher will come, I surely let you know. मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं वही बोल रहा हूँ कि आई कैन नॉट गारंटी अ जॉब, बट जितनी अगर कोई भी फ्रेशर्स की जॉब आएगी या मेरे कोई भी रेफरेंस में ऐसा आएगा, आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू और ट्राई टू कनेक्ट यू. क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट लोगों ने जॉब मिली है ऐसा नहीं है. बट टाइम, आप किस जोन में काम कर रहे हो, कहाँ रहते, उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पे मतलब इफ यू आर वर्किंग इन दिल्ली एरिया तो आपको दिल्ली में जॉब आराम से मिल सकती है. क्योंकि कंसल्टेंसी भी बहुत हो गई है इन सब की. ठीक है. सर जैसे मैं हिमाचल से हूँ ना मैं, हम्म. तो उस हिसाब से हम बताओ क्या See, हिमाचल से नॉर्थ यू इंडिया हैव में टू, कहीं भी यू विल गो टू दिल्ली मिनिमम. मेयर
वेयर पॉसिबल आपको दिल्ली में जाओगे, देयर इज, आजकल क्या हो गया है कि प्रोग्राम कोई कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर नहीं ले रहा, दे आर सबलेटिंग टू द सब कॉन्ट्रैक्टर, तो देयर इज चांसेस यू विल गेट द जॉब, और देयर इज एन नंबर्स ऑफ कंसल्टेंसी कंपनी जिनको प्रोग्राम बनाने रहते हैं, ये सब रहते हैं, तो दे विल हायर यू, बट यू हैव टू शोकेस योर स्किल समवेयर, लाइक लिंक्डइन हुआ, मतलब कि मेरे को ये आता है, थोड़ा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली इन सम टाइम, और कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम करके वहां से वो 1 साल थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके कि हाँ मैंने वहां काम किया, स्टिल यू आर नॉट वर्किंग ऑन प्राइमवेरा, ओके, बट आपके पास सर्टिफिकेट है, बोल सकते हो मैंने प्राइमवेरा पे प्रोग्राम बनाया है, इफ यू नो, इफ यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट, आपको जॉब कर रहे हो लेकिन आप साइड पे काम कर रहे हो बट यू नो दी प्राइमवेरा, तो आप ऐसे प्लानिंग फील्ड में आ सकते हो। हाँ सर, लोकल कॉन्ट्रैक्ट मतलब किस तरह का काम होना चाहिए उस लोकल कॉन्ट्रैक्टर के सी, पास? मैं बोल रहा हूँ लोकल कॉन्ट्रैक्ट, यू नीड टू वर्क हार्ड टू टेक योर पोजीशन इन मार्केट, या इट इज राइट। सी, लोकल कॉन्ट्रैक्टर, एनी कॉन्ट्रैक्टर जो सिविल वर्क कर रहा है और जो किसी से पूछे, अगर मेरे से पूछे कि हाँ ये इंसान वहां काम कर रहा था, तो बोल सके हाँ ये काम कर रहा था, कुछ मैटर नहीं करता कि वो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी भी जनरल कंसल्टेंट में रिक्वायरमेंट है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो दे विल हायर यू, बट वो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर आप साइट पे भी काम कर रहे हो बट यू विल शो आई एम वर्किंग एज अ प्लानिंग, मेरे को ये सारी चीजें आती है, एंड यू क्रैक योर इंटरव्यू, तो श्योरली यू विल गेट द जॉब। अच्छा, हाँ ओके, तो बाकी सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मतलब सीधा हम जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे या फिर हमें सी कहीं? मैं तो बोल रहा हूँ जॉब के लिए आप अभी भी एलिजिबल हो, यू नीड टू वर्क हार्ड, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन किस्मत, लक, आपने जिस इंसान को मैसेज किया उसके पास उस दिन जॉब आ गई। अच्छा, हाँ ओके, बाकी सर हमें इंटर्नशिप तो नहीं करनी पड़ेगी ये कोर्स के बाद कोई? देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि इट्स वेरी हार्ड टू से कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इंटर्नशिप इट्स समथिंग कि आपको अगर है तुरंत कहीं जॉब मिल जाए, उसको चाहिए कि आपको प्रोग्राम बनाना है, या रिक्वायरमेंट ऐसी रेज हो जाए, तो इट्स डिपेंड। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि ऑन एन डे यू विल गेट द जॉब, यू विल लर्न द सॉफ्टवेयर, ये मेरी गारंटी है, बट जॉब मैं गारंटी नहीं कर सकता। तो हाँ मैं सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ, या कोई भी मेरे से पूछता है तो आई कैन हेल्प इट आउट, बट उधर उस लेवल पे वो नहीं हो पाएगा ना। हाँ, ओके, यस सर, यस। एनी क्वेश्चन? शैल वी क्लोज? Please share the class schedule. See, class schedule I have to confirm with the team कि क्या decide हुआ है, but I think it's Thursday, Friday, Saturday from 8:30 to our class. Okay. So can we get awareness message me? Uh, एक मिनट, हेलो, हाँ भैया, क्या? आया आया, ठीक है, ओके, बाय। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, हाँ लाइव क्लास रिकॉर्डिंग होगी ना, there will be a class recording. चलो, ओके, बाय 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 बाय, बाय।